Hello students, my name is Shazia Khan. Today we are going to study history, standard 8, chapter number 5, social and religious reform. In this chapter we will study what changes came in the society and religions. Okay? Along with spread of English education, there were spread of new thoughts, new idea, new philosophy. Indians were also introduced Western thoughts and culture. Due to it, there were changes in social, religious, economic and culture aspect of Indian society. जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होने लगे वैसे वैसे उनके थॉट्स में कल्चर में रिलीजियस में इकोनॉमिक में क्या आने लगी चेंजेस आने लगी ओके द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस बिकम अवेयर दैट द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया वॉज ड्यू टू सुपरस्टिशन casteism, old custom, class systems, and lack of critical outlooks. When people get education, they did not believe in superstition, casteisms, old customs. Okay, they use their modernity. It was necessary to educate the flaws and undesirable tendency for progress of the country and to create new society based on principles of humanity, equality and fraternity. जब लोग वेल एजुकेटेड होने लगे तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो सुपरस्टिशन कास्टिज़म ओल्ड कस्टम्स की वजह से नहीं हो सकती है. इफ़ वी वांट टू डेवलप आवर कंट्री वी नीड टू क्रिएट न्यू सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. The educated thinkers started social awareness through writing to solve the various problems in the society. जो वेल एजुकेटेड थे उन्होंने क्या किया सो द वेल एजुकेटेड पीपल स्टार्ट राइटिंग टू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. ओके द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इट्स कॉल्ड इंडियन रेनेसेंस. ये जो छोटी सी शुरुआत हुई थी इसी को ही इंडियन रेनेसेंस बोलते हैं. मतलब कि नई न्यू बर्थ ओके नया जन्म हुआ था. ठीक है मतलब लोगों में अवेयरनेस आने लगी थी चेंजेस आने लगी थी इसके लिए उसे इंडियन रेनेसेंस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है So in this chapter we will study what the changes came in the society and religious. Okay, so students, there were many peoples play an important role to solve the religious and social reforms. Okay, कुछ ऐसे समाज के लोग थे जिनकी वजह से कंट्री में काफ़ी सारी चेंजेस आई. ठीक है तो पहले जो है राजा राम मोहन रॉय है जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कंट्री में चेंजेस लाने के लिए. ओके ब्राह्मो समाज ये ब्राह्मो समाज से थे. इन 1828 राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश द ब्राह्मो समाज इन बंगाल. ही हैड स्टडीड many languages and religion. Through it is ideology of Advaita philosophy was developed. The Brahmo Samaj was established in 1828. Raja Ram Mohan Roy studied many languages. He expressed their ideas okay through Advaita philosophy. Okay he believes in monotheism. Monotheism means believe in God only. Okay caste and class equality. There is no discrimination on the basis of class or caste. Okay he opposed sati practice, child marriage, parda system. Okay he also against of all these things. He promoted widow remarriage and female education. He founded Hindu college in Kolkata. Okay so these changes came in the country. Okay
He believes that widow has also rights to marriage, and female also has a rights to get educations. Okay, when this samaj established in the society, these changes happened in the society. Prathana Samaj. This Samaj is also play an important role in the society. Uh, Dadoba Pandurang Tadkar established Pramansa Sabha in Mumbai in 1848. This Samaj established in Mumbai. Okay. Later, Pramansa Sabha was dissolved and some of its members founded the प्रार्थना समाज. कुछ टाइम के बाद ये जो समाज था वो डिज़ोल्व हो गया. दादोबा के बाद उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने जो है वो प्रार्थना समाज को कंटिन्यू रखा. ठीक है, वो अपना जो वर्क है उन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू रखा. द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ड्यू टू एनरोलमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. इन्हीं के थ्रू जो है मुंबई यूनिवर्सिटी से ज़्यादा यंग्स जो है ग्रेजुएट होने लगे. जस्टिस रांडे, डॉक्टर R.G. भांडारकर कैरी फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज. ये जो थे सेकेंड प्रेसिडेंट्स वी कैन से दैट. ओके, दिस he continued the work of Pratna Samaj. The oppositions to idol worship, monotheism, oppositions to ritual were the principle of Pratna Samaj. जो इस समाज के लोग थे वो कास्ट या क्लास के बेसिस पे लोगों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे. ठीक है, दे स्ट्रेस ऑन द डिवोशन एंड प्रेयर फॉर द रिमेनिंग द सोसाइटी. प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फनेज, वुमेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. इस समाज के लोग ने भी काफ़ी चेंजेस लाई, जैसे कि उन्होंने ऑर्फनेज बनाया, वुमेंस की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया, नाइट स्कूल्स फॉर वर्कर एंड सोसाइटी फॉर दलित्स. महर्षि विठल रामजी शिंदे, ए मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज, एस्टेब्लिश डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन थ्रू वी द मिशन ऑन द अटेम्प्ट वाज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स. अब ये जो विठल राम जी थे, इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया जो कि सोसाइटी में होने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए. तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक मिशन बनाया. ठीक है, तो जो ये समाज के लोग थे उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की कंट्री को डेवलप करने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज़ ए सत्यशोधक समाज. महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज. अब ये समाज किसने स्टार्ट किया, एस्टेब्लिश किया? तो ज्योतिराव फुले ने स्टार्ट किया. ओके, जो आप नीचे फ़ोटो में देख सकते हो ज्योतिराव फुले की फ़ोटो. ठीक है, स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 में सत्यशोधक समाज की इस्टेब्लिश हुई थी. सत्यशोधक समाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी. अब इस समाज में लोग किस पे काम करते थे कि समाज में जो है सबको एक जैसा देखना चाहिए, सबको एक ही राइट्स मिलने चाहिए, कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, किसी को कास्ट या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. दे रिप्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी. अब छूत छात पे जो है ये बिलीव नहीं करते थे, ये इसके अगेंस्ट थे. दे एडवोकेटेड एजुकेशन among the depressed classes and women. Mahatma Phule reformed the society through the medium of book like ब्राह्मणाचे कसबा, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा असर and सार्वजनिक सत्य धर्म. He severely criticized the tradition and customs that made discriminations between men and women or rather than human being himself. मतलब इनका जो मेन मिशन था, मकसद था, वो ये था कि डिस्क्रिमिनेशन
कास्ट या क्लास के बेसिस पे नहीं होना चाहिए या फिर वुमेन और मेन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए कास्ट की। अब पहले के जो लोग थे वो लड़कों की एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे और लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। ठीक है, तो इस समाज ने ये चेंजेस लाए कि एवरीवन हैज़ ए इक्वल राइट्स। ओके, नेक्स्ट इज आर्य समाज। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। ये समाज एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1875 में। ओके, इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ही रॉट द बुक सत्यार्थ प्रकाश एज ए commentary on Vedas. Ancient Vedic religion is a true religion which has no places for casteism. He asserted that there should be gender equality. Go back to Vedas was the sole slogan of Arya Samaj. The branches of Arya Samaj were open all over India. Many education institutions were established through the medium of आर्य समाज। तो इस समाज का भी मेन एम क्या था कि लोगों को जो है इक्वली देखना चाहिए, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि ये मेल है तो इसको पहले इम्पोर्टेंट दो और फीमेल को बाद में। देयर वेर मैनी ब्रांचेस ओपन इन ऑल ओवर द इंडिया। ओके, सो understood students, these samaj play an important role in the progress of the country. Okay, this chapter I will continue in the next video.